मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, डीके शिवकुमार जी, सिद्धरमैया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, बीके हरिप्रसाद जी, एमबी पाटिल जी, senior leaders of the Congress Party, workers of the Congress Party all over the state, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. Am I going to do the interaction first? Later. Okay. We are faced with an election in Karnataka. And Karnataka has always had the spirit of the Congress Party. This is a natural Congress state. The other thing to be very clear about is that the current government of the BJP is not a legitimate government. It was not a government that was elected legitimately. It was a government which was made using financial resources and subterfuge. I'm very clear about a couple of things going forward. I think the first thing we have to be very clear about is that for us, we should not aim to win this election with a close margin. We should be very clear in our mind that we are going to get not less than 150 seats. And so we should start our calculations from 150 seats. This is not a difficult task. This is actually quite an easy task for the Congress Party. If we get together, if we fight together in a united way, if we fight on the right issues, and if we guarantee merit as the criteria for our candidates, for our leaders, for our workers. I do feel that it is very important that we promote people based on the service that they have done for the party. I don't think we should be promoting people based on likes and dislikes. And today in Karnataka, it's very easy to find out who is actually doing the work and who is not. And you can see on Zoom we have all the enrollers, and it is very obvious which are the people who are delivering for the Congress Party and which are the people who are not. And I think we should be absolutely ruthless with this idea. I don't think we should be deciding tickets based on past history, what a person has done 20 years ago. I think we should be basing tickets on the work the person is doing for the Congress Party today. And if that person is behaving in a loyal way to the party, if that person is giving his full effort to the party, if that person is a good representative of the party, then the party must ensure that that person is protected, that person is rewarded, and that person gets the relevant position in the party. So once again, I'd like to state these three principles. Number one, we should not fight an election
to make it a close election. We should fight the election to make it a decisive victory for the Congress party. Minimum seats 150, not one less than that. Number two, we should make our decisions based on merit. And number three, we should reward those who have worked effectively, who have fought, defended the issues, and fought loyally for the Congress party. Of course, it goes without saying that we need to reward our workers. And they should be very clear that when we do come to power in Karnataka, we are going to use the government in a way that defends the issues that our workers fought for, but we are also going to reward the Congress worker who gave his blood and his tears for the party. So that is from an organizational standpoint. I'd also like to speak about what is going on in the country, what the BJP is doing, and how they think about fighting elections. I'll speak a little bit in Hindi also, or would you like me to continue in English? Hindi also? तो देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटका में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटका में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, तो ये तो मजाक होगा। और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, यह भाषण नहीं दे सकते। आज कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता है। बीजेपी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर
2, 3, 4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है। गरीबों से पैसा लो और 2, 3, 4 उद्योगपतियों को पैसा दे दो, ये उनका सिस्टम है। तरीका क्या है? तरीका देश को बांटने का है, देश को लड़ाने का है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी जो सच्चे मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको उठाने की है। हमारी जिम्मेदारी रोजगार की बात करने की है। हमारी जिम्मेदारी इकोनॉमी को ठीक करने की है। हमारी जिम्मेदारी देश के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जात हैं, इनको एक साथ लाने का काम है। यह कांग्रेस पार्टी करती है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उनका काम तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है। हमारा काम जोड़ने का है, सबको एक साथ लाने का है। और यह हमें कर्नाटक में करके दिखाना है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा मेंबर, आज डीके शिव कुमार जी ने कहा कि 60 लाख मेंबर कर्नाटक में हमारे एनरोलर्स ने, हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी में लाए हैं। 60 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। और इसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो युवा हैं, नए मेंबर्स हैं, नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इस चुनाव में हमें 2 चीजों पर फोकस करनी है, युवा और महिला। युवा और महिला। और जहां भी हम युवाओं को और महिलाओं को आगे ला सकते हैं, चाहे वो टिकट डिसीजन में हो, चाहे वो संगठन में हो, हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ उनको आगे लाना है। एक तरीके से हमें कर्नाटक को एक नई कांग्रेस पार्टी दिखानी है, जो मुद्दों पे लड़े, लोगों को एक साथ लाने का काम करे, और जो बीजेपी के झूठ हैं उनको पब्लिक के सामने क्लैरिटी के साथ रखे। हमारी जब सरकार थी, हमने कर्नाटक में, दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए थे। हमारा रिकॉर्ड, कर्नाटक की सरकार का, सिद्धरमैया जी की सरकार का, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो उसे भी हमें दोहराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमने क्या किया था और आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। तो यह मेरा आपके लिए मैसेज है। 150 सीट से एक कम सीट नहीं लानी है आपको। और आखिरी बात, सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी, खारगे जी, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काफी समय में पिछले चुनाव में आपके साथ घूमा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे जरूरी चीज, और वो मुझे दिख रहा है कि हो रहा है, सबसे जरूरी चीज, आप सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसको आप पूरा कर रहे हो मगर और गहराई से पूरी करनी पड़ेगी, आपको सबको एक साथ मिलकर 150 सीट कांग्रेस पार्टी को जितवानी है। तो ये मेरा मैसेज था। जहां भी आप चाहो,
जब भी आप चाहो मैं हूं, आप मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो, कर्नाटका के कोने कोने में मैं आने के लिए तैयार हूं। और ज्यादा समय नहीं बचा है, मगर मुझ में पूरा भरोसा है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीतेगी, 150 सीट से ज्यादा जीतेगी, और फिर हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए काम करे और कर्नाटक को फिर से सही रास्ते पे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।